नमस्कार भाइयों, exclusive for boys. If you are a girl, stay away from this video. This is my personal request to all of you. This is not something about affection or something which you feels that you have that power that you can attract anyone and you can torture them in such a manner that they may feel that they have to end their life without fulfilling the ultimate purpose of this life. I am not a blind follower of anyone. It hardly matters whether it is any kind of descriptions of the forms of God by any representatives of any so-called anthropogenic civilization. If you assume yourself that there are some concept of soul on this planet, in this universe created by that omnipotent, omniscient and omnipresent God, so you must be recalling about the different available forms of this nature. If you are worshipping that form, that why can't you integrate or disintegrate the same concept about God? It means you have to expand the origin of your thinking, feeling, perception, attitude, behavior, sensitivity about God. There is nothing as such contradictory among all the religious sculptures available in this planet nowadays. You'll have to go and observe the essence of all those religions, the ethico-spiritual values. I am blessed, maybe recalled as blessed because still I am in this world and living with my contemporary co-inhabitants, souls on this planet Earth in different biodiversified species and some life particles without having any entrance to any soul. If virus could exist, which could be remain dormant up to certain extent of time, then why can't the soul particle could remain dormant into this environment? If hibernation and perenniation exist, then why can't that particle, that life particle, could remain or take its form into any five medium of our basic elements like earth, water, fire, ether, and air. So it resembles that life particle. If this light particle exists, if this Wi-Fi, internet connectivities, that the video which I am recording, you could be able to see, it would be a past incident for you if you are not watching it live, and you could recall it for future, and that medium was this air. If such kind of communication could exist, then why can't those living particles could exist, could take its form in this divine nature? If you all people have to put your all efforts to select and depute the best talents of astronomy to go and explore about Mars,
then can't you imagine about the capacity of God? This is all about scientific foresight for spirituality and other dimensions. I would suggest you all to develop a perspective that you are a soul, but you should not close your eyes and meditate with your closed eye, because you will have no any as such experience which you could experience while performing your all the duties with the feeling of karma sannyasa, like Krishna. If we will evaluate about the practicality of his life, you can observe that most of you have been cheated and betrayed by your beloved one in the manner as he might have been earlier. So he decided to utilize his full potential for the sake of the welfare of the just full society, for the protection of all those ethico-spiritual values, love, truth, justice, and compassion. And if you are fighting war against any kind of evils, the basic representation of the power of devils by your so-called ethico-spiritual heavenly values of spirituality in any manner, it doesn't matter, you have to counter, and that chain reaction will continue from every length and breadth of this world. Then that will be the ultimate war for the righteousness, dharma. Utilize your powers. It doesn't matter whether you have this vocal power, thinking power, some scientific skills, spiritual skills, or whatsoever. You have to utilize that skill creatively and for the purpose of humanity. So you might not have ever to feel yourself culprit as Alfred Nobel, because he has constructed something that was not ever imagined by him to become the most destructive on this planet Earth. So what you are creating, what you are operating, and the way how you are destroying something, it should be sustainable from micro level to macro level, from individual level to biosphere level. Whatever you are doing, whatever are your activities, that has to be planned, monitored, and controlled accordingly, which could bring ultimate solution to all the existing contemporary problems of this world. Concept of one world family. That's all today from Chandan Mishra. I will be happy to share my thinking, feeling, and perspective with you on frequent intervals. Till time, try to conceive that you are a soul. Jai Hind.
जैन फ्रेंड्स, मैं आज़ाद हूँ, मिशन आज़ाद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। हमारे बीच में ये अभय चौधरी जी हैं जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, और ये मिस्टर अब्दुल कलाम जी हैं, ये भी आईएएस एस्पिरेंट्स हैं। तो आज हम इन दोनों से थोड़ा अपने देश के हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे, क्योंकि ये सब हिस्ट्री के बारे में कुछ डीपली जानकारी रखते होंगे, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। जी सर, आप ये बताइए कि हमारा देश अगस्त 15 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके पहले आज़ादी मिल गई थी या फिर एग्जैक्ट अगस्त 15 को ही मिली 1947 को, या फिर इसकी जो थी कि 1947 को 15 अगस्त को ही क्यों उन लोगों ने भारत देश को छोड़ने की कोशिश की, या फिर उन्होंने हैंड ओवर किया इंडिया को, तो इसके बारे में थोड़ा। सर्वप्रथम अगर देखा जाए कि इतिहास के बारे में, तो अगर कांग्रेस के सर्वप्रथम कांग्रेस के बारे में बताते हैं, तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो उद्देश्य था उसका राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देना। उस समय इसका पॉलिटिकल व्यू नहीं था, हालांकि अभी कांग्रेस बहुत चर्चा में है, उसका पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, वो अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके इतिहास के बारे में जहाँ पर देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, आपने पूछा स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। और उस समय एक कांग्रेस का अधिवेशन होता था, प्रथम द्वितीय तृतीय, उसी तरह एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन जो था 1929 में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ही पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। मतलब उस प्रस्ताव में जो जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उस अधिवेशन में पारित कर दिया गया कि जो अंग्रेज हैं वो पूर्ण रूप से भारत से खदेड़ दिए जाए, मतलब भगा दिए जाए, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। हालांकि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज घोषित किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, क्योंकि 1907 में फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो इसका इतिहास यही है। और देखा जाए कि 15 अगस्त को ही क्यों हुआ, तो इसका यही 15 अगस्त को, चूँकि अगर देखा जाए तो 1947 का एक एक्ट आया था, तो 1947 में माउंट बैटन एक्ट बोला जाता है, माउंट बैटन प्लान। तो माउंट बैटन प्लान के द्वारा जो है लॉर्ड माउंट बैटन, जो कि उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल उस समय होने के नाते वो यहाँ पे आके सर्वप्रथम ये घोषित कर दिए कि जून 1947 को ही भारत आज़ाद हो जाएगा। और चूँकि अगस्त को आज़ादी मिल गई, इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। थैंक यू। ये आज़ादी तो मान लो मिल गई हमें, उसके बाद ये अचानक भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हो गया, और ये क्या विभाजन होना जरूरी था या फिर किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से विभाजन करना पड़ा? परिस्थिति चूँकि उस समय बताएं, लॉर्ड माउंट बैटन प्लान आया था। माउंट बैटन प्लान का मतलब है कि उस समय एक 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ही प्रावधान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग प्रांत बनेंगे। हालांकि 3 स्टेट थे जो कि मतलब स्वतंत्र होना चाहते थे, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई किया गया, सैन्य कार्रवाई करके उसको भारत में विलय कर दिया गया। और दूसरा है ये जूनागढ़, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा के वो विलय हो गया। लेकिन जो बचा जम्मू कश्मीर, जो कि स्वतंत्र रहना चाहता था, स्वतंत्र रहने का उसका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे एक राजा थे, डोगरा वंश के संस्थापक थे, डोगरा वंश के राजा थे महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह ये चाहते थे कि वो हम जो है स्वतंत्र हैं, हम ना तो भारत में मिलेंगे न पाकिस्तान में मिलेंगे। तो पाकिस्तान का विभाजन इसलिए हुआ कि 1947 में एक्ट में प्रावधान कर दिया जा चुका था। वो एक्ट मतलब माउंट बैटन प्लान के नाम से जाना जाता है। और मतलब वो एक्ट जो वही हरि सिंह जो थे, क्योंकि वहाँ पे एक कबीलाई जाति के द्वारा पाकिस्तान से कुछ ऐसे तत्व थे जो कि वहाँ पे आक्रमण कर दिया गया कश्मीर में। और कश्मीर में जब आक्रमण किया गया कबीलाई जनजाति के द्वारा, तो यहाँ से वो मतलब भारत के लिए भारत से मदद मांगने के लिए आए। तो भारत से मदद मांगने के लिए उस समय चूँकि जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो उनसे मदद मांगा गया। तो मदद तो दिए सैन्य, लेकिन 3 शर्त रखें। एक था व्यापार, विदेश और संचार, 3 चीज़ जो है अपने अंडर में रखेंगे। और
बाकी बात जितना है आप आंतरिक मामला में आंतरिक प्रशासन आंतरिक शासन चलाने वाला स्वतंत्र है, यही बोला गया था वहाँ पे। और जो विभाजन है, विभाजन तो मैंने महाराजा हरि सिंह के बारे में बताया कि महाराजा हरि सिंह उस समय डोगरा वंश के जो राजा थे, तो भारत से मदद लिया गया उनके द्वारा। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। सैन्य कार्रवाई के लिए मदद भी किया गया कश्मीर के लिए। तो कश्मीर में भारतीय सेना गई और पाकिस्तानी सेना जो पाकिस्तान से जो भी कार्रवाई किया, दोनों के बीच में भिड़ंत हुआ। और इस भिड़ंत के बाद जो है हमारे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूएनओ में गया, यूएनओ चले गए और यूएनओ में जाके इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया गया। और इंटरनेशनल इशू बनाने के बाद जो है यूएनओ से ये घोषणा आई कि पाकिस्तान की सेना जहाँ है वहीं पे रुक जाए और भारत की सेना जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। तो उसके बीच में बॉर्डर खींचा गया, जिसकी वजह से वो पीओके वाला पार्ट वो हो गया। पीओके उसी को बोला जाता है आज जो पीओके बोला जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, वही पार्ट है। तो उसके इधर जितने भी जो भी पीओके का पार्ट था, और अगर देखा जाए उसी टाइम उसके बाद 1962 का बात है, 1962 में चाइना के द्वारा किया गया। तो वो अलग मुद्दा है, चूँकि हम स्वतंत्रता दिवस मतलब भारत और पाकिस्तान के बारे में जान रहे हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, तो भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय इमरजेंसी देश में लगा हुआ था। देश में सबसे प्रथम इमरजेंसी जो है इसी बार लगा 1962 में, इंडो चाइना वॉर जो हुआ था। तो जो इमरजेंसी लगा 1962 के जो युद्ध हुआ, ये इसका कारण यही था कि देश जो दलाई लामा थे, वहाँ धर्मगुरु बोला जाता है, तिब्बत का धर्मगुरु दलाई लामा को ही बोला जाता है। और दलाई लामा जो थे वो भारत के लिए कुछ भारत आ गए थे। तो भारत आने का इसका वजह मतलब 1962 का जो युद्ध का एक कारण उनको भी माना जा सकता है कि भारत में वो यहाँ पे, हालांकि अभी भी जो है उनका हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में वहाँ का तिब्बत का जो ये है वो चलता है। संसद जो है यहीं पे हिमाचल प्रदेश में ही उनका प्रशासन यहीं पे चलता है। तो वही है कि जो पंचशील समझौता भी किया गया भारत और चाइना के बीच में। इस पंचशील समझौता के माध्यम से दोनों देशों का जो सहयोग है जो भी है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। और पंचशील समझौता के उससे पहले ये चाइना के द्वारा जो कब्जा कर लिया गया वो पार्ट था भारत का, उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अक्साई चीन जो है वो अक्साई चीन भारत से वो चाइना के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, जो कि LAC एक है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो उसकी उस पार जो है वो चाइना का कब्जा है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके उस पार पाकिस्तान का कब्जा है। तो ये जो था लद्दाख तो हालांकि बीच में पड़ता है, जम्मू कश्मीर थोड़ा साइड में। तो जम्मू कश्मीर, और अब वर्तमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन विधेयक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक परिसीमन, चूँकि कश्मीर जो है अब धारा 370 के द्वारा अब कश्मीर को जो संविधान में दर्जा दिया गया था वो मतलब वहाँ से हटा दिया गया। स्पेशल प्रोविज़न था भारतीय संविधान का भाग 21 जो है, आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी ट्रांजिशनल अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान करती थी। लेकिन वहाँ का जो नागरिकों का जो हनन था, नागरिकों का जो अधिकार था, उससे वंचित हो रहा था। वहाँ की जो महिलाएं थी, अगर किसी गैर जम्मू कश्मीरी से शादी करती थी, उनका जो प्रॉपर्टी था या उनका जो अधिकार था वहाँ से वंचित कर दिया जाता था। तो ये प्रोविज़न हटने से उनको थोड़ा सा सहूलियत तो मिलेगा, और भी बहुत है, रोजगार भी बढ़ेगी, FDI बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इससे देश का जो विकास है वो और अपने चरम स्थिति पर पहुंच जाएगा। और राज्य पुनर्गठन विधेयक जो अभी संसद से पारित भी हो चुका है, तो अगर देखा जाए राज्य पुनर्गठन 370 और 335 से, चूँकि अगर 370 के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि 370 जो धारा 370 है वो जम्मू कश्मीर को अस्थायी राज्य का दर्जा देता था, टेम्पररी, इसलिए संविधान से हटा दिया गया और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा लाया गया था, मतलब राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था संविधान, भारतीय संविधान के भाग 21 में। इसलिए इसको समाप्त किया जाना संभव हुआ, नहीं तो नहीं होता। अगर ये उस समय क्योंकि टेम्पररी लिखा हुआ है कि टेम्पररी का मतलब क्या होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है टेम्पररी।
तो अगर देखा जाए इसलिए हटा दिया गया धारा 370 और 35A। और 35A में धारा 370 में ये भी लिखा हुआ था कि धारा 370 में ये भी लिखा हुआ था कि जो प्रेसिडेंट घोषणा कर धारा 370 के द्वारा जो भी उसको किसी जम्मू कश्मीर में जो भी लागू करने का अधिकार तो उस हटाने का भी अधिकार उनको दिया गया था, इसलिए हटा दिया गया धारा 370 और वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही काबिल तारीफ बोल सकते हैं। तो 35A और राज्य पुनर्गठन विधेयक, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है संसद से जो पारित हो चुका है, तो संसद राज्य पुनर्गठन विधेयक का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग प्रांत, दो अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का अलग मामला है और जो लद्दाख है उसका अलग डिवीज़न है। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल होगा वो वहाँ का प्रशासक होगा, उसके द्वारा पूरा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाएगा। और जो लद्दाख है वहाँ पे ये होंगे, वहाँ पे प्रशासक होगा, जैसे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ के तरह ही वहाँ पे प्रशासन चलाया जाएगा जो लद्दाख में। तो दोनों राज्य पुनर्गठन विधेयक में यही बताया गया है कि राज्य जम्मू कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन है वो किस प्रकार से किया जाएगा और कितने निर्वाचन क्षेत्र में किस पार्टी या किस क्षेत्र का कितना रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व होगा, उस पुनर्गठन में आयोग विधेयक में यही बताया गया है। और अगर देखा जाए बांग्लादेश के मुद्दे, तो 1971 में जो बांग्लादेश को भारत के द्वारा, भारत का एक अहम सहयोग था 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करने में। और 1971 में इसी मुद्दे पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है 1971 के बाद, और वेस्ट पाकिस्तान जो है हमारा पाकिस्तान जो अभी देख रहे हैं वो पाकिस्तान है। तो वहाँ पर जो नस्ल के रूप में या अल्पसंख्यक को जो अधिकार नहीं दिया जाता था, तो 1971 में जो है इसके वजह से जो ये है बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा दे दिया गया। तो ये इसी आधार पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। अभय चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस डिबेट में भाग लिया और भारत की जो भी सामरिक स्थितियां रही हैं या फिर जो आज़ादी से लेकर के भारत पाकिस्तान का विभाजन और पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन के बारे में जितना भी बताया काफ़ी अच्छा रहा। और हमारे बीच में भी नासिर भाई भी आ गए हैं, ये भी एक IAS अकेडमी ओपन करना चाहते हैं और जल्द ही इनका ओपन भी होने वाला है, सितंबर तक स्टार्ट कर देंगे और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं अब्दुल जी से। ऐसा माना जाता है जैसे कि अभी जो र्यूमर फैलाया जा रहा है कि जो आज़ादी मिली है वो गांधी जी की वजह से ना मिल करके वीर सावरकर जैसे नेताओं की वजह से मिली है, जो कि RSS के बहुत बड़े नेता या फिर संस्थापक माने जाते हैं या फिर जो जनक माने जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि राजनीति में तो भारत के आज़ादी में इनकी कितनी भूमिका रही है या इन्होंने कितना हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के? देखिए सर, मैं सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में कुछ अल्फाज या शब्द या वर्ड कहना चाहूँगा। और जितने भी मेरे भाई और बहन और माता पिता समान सभी लोग मेरे को देख रहे हैं, तो मैं आज ये बताना चाहूँगा हमारा देश आज़ाद हुआ है, बड़ी मुसीबतों बड़ी परेशानियों के साथ हुआ है। और हमारा भारत देश एकल नागरिक से स्वतंत्र नहीं हुआ है। हमारा देश अगर आज़ाद हुआ है तो सभी भारतीय नागरिकों की इसमें भूमिका रही है। इसमें आलिम लोगों का भी योगदान है और टीचरों का भी योगदान है, स्टूडेंटों का भी योगदान रहा है इसमें, और इसमें आपका बुजुर्गों का भी योगदान रहा है। अगर कोई शख्स ये बोले कि हाँ भाई मेरे सिंगल होने से हमारा देश आज़ाद हुआ, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। तो आज हमारा भारत देश अगर आज़ाद हुआ है तो उसमें उलमाए कराम का भी योगदान रहा है, आलिमों का भी योगदान रहा है, मदरसों के मौलवियों का भी योगदान रहा है, पंडितों का भी योगदान रहा है, जितने भी धर्म गुरु हुए हैं सभी का योगदान रहा है। तो मैं जितने भी जिन्होंने भी मतलब इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है, मैं आज उनको सलाम करता हूँ। सर सैयद अहमद खां की इसमें ज़्यादा भूमिका रही है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की भूमिका रही है, असद मदनी
कि असद मदनी के जितने भी उस्ताद रहे हैं उनके भी भूमिका रही है, मदरसों के जितने भी मौलाना रहे हैं, आलिम रहे हैं, और जितने भी तालीम याफ्ता लोग रहे, सभी ने मतलब देश को आज़ाद कराने में अपनी प्राथमिकता निभाई है और भूमिका भी निभाई है। तो आज हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारे देश में सभी नागरिक समझते हैं हम देश में आज़ाद है, लेकिन हम लोग आज आज़ाद नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए और समझा जाए तो हम आज़ाद नहीं है। आज भी हम लोग ब्रिटिश शासन काल की नीतियों पर अमल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। आज भी हम लोग आज़ाद नहीं है, हम लोग बंधे हुए हैं, जंजीरों बंधे हुए हैं, गुलाम वाली जिंदगी जी रहे हैं। एग्जाम्पल दैट, हम लोग सर्विस करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, 8 घंटे की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन होता है क्या है, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहां देखते हैं 12 घंटे की सर्विस लेते हैं, तो कहाँ आज़ाद है हम लोग आज़ाद नहीं है। अगर हमको आज़ाद होना है तो सबसे पहले हमको शिक्षित बनना चाहिए, एक सभ्य नागरिक बनना चाहिए, और उसके बाद हमको जितना भी हमारे पास समय है हमको अपने पढ़ाई में गुजारना चाहिए, और बाकी जो टाइम बचता है 2 घंटे का 1 घंटे का अपना काम भी करना चाहिए, माता पिता का हाथ भी बटाना चाहिए। तो ये भी एक सामाजिक स्थिति है। इसको भी सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें 15 अगस्त को सही तरीके से मनाना चाहिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बस मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल सुभान शाह, आई लिव फ्रॉम द शहीद नगर एंड आई एम स्टडिंग UPSC पार्ट एंड डू द वर्क एंड विद इन तो मेरे विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा प्रोवाइड भी करा रहे हैं। अगर देश में गरीब परिवार से अगर कोई छात्र है, ये छात्रा है, UPSC करना चाहती है, SSC करना चाहती है, ये PCS करना चाहते हैं, तो आप मेरे विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और उधर आज़ाद IAS अकाडमी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं। सितंबर में हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। उधर नासिर IAS अकाडमी लॉन्च हो रही है, और इन फ्यूचर एक अब्दुल कलाम IAS मिशन फाउंडेशन भी खुलने जा रहा है। आप भारत में किसी भी राज्य में, कहीं भी, किसी भी देश में आप लोग बैठे हुए हैं और हमको देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताइए मेरे विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो आग्रह है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें और जितना भी समय हो तो पार्ट टाइम से निकाल के इस चैनल के माध्यम से शिक्षित होइए, सभ्य नागरिक बनिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल भारत में देखा जाता है कि शिक्षा से लोग वंचित हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। कारण क्या होता है कि एक्चुअली उनके पास पैसा नहीं होता, पैसा ना होने के कारण वो शिक्षित नहीं हो पाते, अपने लक्ष्य को, सपनों को पूरा नहीं कर पाते, वो IAS नहीं बन पाते। सपना तो IAS बनने का देखते हैं, लेकिन वो चपरासी भी नहीं बन पाते। कारण क्या होता है, वो असहाय और दबे हुए, कुचले हुए होते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंटों से, विद्यार्थियों से और शिक्षित अध्यापकों से जो UPSC में आना चाहते हैं एज ए प्रोफेसर और डॉक्टर और इंजीनियर हो और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से आज़ाद IAS अकाडमी से, नासिर IAS अकाडमी से, अब्दुल कलाम IAS फाउंडेशन के माध्यम से आप पार्ट टाइम में इस चैनल को देख सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे अकेडमी ऑर्गेनाइज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो रहे हैं। आप लोग सभी आइए, इसमें अपने स्टूडेंटों को एडमिशन कराइए। तो मुझे भी खुशी होगी, मेरे समाज को भी खुशी होगी कि गरीब का बच्चा भी एक IAS बन रहा है। ऐसी बात नहीं, हमारे भारत देश में गरीब का बच्चा IAS नहीं बनता, रिक्शा चालक का बच्चा IAS बनता है। अंसार शेख को देखिए, आप देखिए, उसके बाद उन्मुल खेर को देखिए, ऐसे भी उदाहरण है हमारे भारत देश में। देखिए, तो जब वो बच्चे IAS बन सकते हैं और चूड़ी बेचने वाले का बच्चा IAS बन सकता है, और रेडी चलाने वाले का बच्चा IAS बन सकता है, तो आप में भी वो कुव्वत है, आप में भी वो ताकत है। आप बस आपको यूज करना है दिमाग अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने एक चीज बनाई है। अगर इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो संसार में, ब्रह्मांड में रहकर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यही मैं अपनी बातों को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अब्दुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में आया और ये हमारे भारत के आज़ादी के बारे में और शिक्षा के बारे में इतना कुछ कहा। अब आइए 2 शब्द हमारे नासिर जी भी कहेंगे
आज आज़ादी के पर्व पे। डियर गाइस, भाइयों बहनों, आज जो प्रोग्राम रखा गया है हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और ये आज़ादी के सिलसिले में जो है आज जो स्वतंत्रता के लिए जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है हमारी, सारी जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुई है, कैसे हमें आज़ादी मिली और हमें किस किस तरह हमें स्ट्रगल करना पड़ा, कौन कौन लोग इसमें शहीद हुए, किन किन लोगों का इसमें किरदार रहा, किन किन लोगों की इसमें भूमिकाएँ रही, उनके योगदान, उनकी जो है क्या मतलब जो है काबिलियत, यूटिलिटी, वो सब इस चीज़ों में आज जो है बताया गया है। और दूसरी बात जो है, हमने जो है 15 अगस्त 1947 का जो मिशन है बहुत काफ़ी स्ट्रगल मिशन रहा है। इसमें जो है मतलब जो है काफ़ी संघर्ष रहा है, और जितने भी मतलब उलेमाए हैं और पंडित लोग हैं जिनने मतलब जो है हमारी इंडिया के अंदर जो एक सेकुलर इंडिया है, वो सेकुलर इंडिया में मतलब जो है सब लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। और आज जो हम जो अभी भी हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आज़ाद नहीं है, क्योंकि आज़ाद इसलिए नहीं है, लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता में जो है वो नेगेटिव पॉइंट आ गए हैं। वो नेगेटिव पॉइंट निकल जाए तो हम आज़ाद हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी मानसिकता भर गई है, मतलब जो है रिलीजन के रिकॉर्डिंग। आज के टाइम में जो है हम जो चाहते हैं, मतलब जो हमारा जो देश था आज से मतलब 10 साल पहले जो पहले देश था, आज भी हम चाहते हैं कि अब भी वो ही देश बना रहे। और हमारे जो कम से कम 10-15 साल के अंदर हमारे देश में जो है ऐसी मतलब जो है लोगों के अंदर जो है भ्रम बढ़ गया है, जो कि वो अपने को कभी जो सो नहीं कर पाते हैं। और हम तो चाहते हैं जितने भी लोग हैं, जितने लोग बंदे आज के टाइम में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आईएएस, आईएफएस की तैयारी करते हैं, करें, बहुत अच्छी बात है, तैयारी करते हैं, कामयाब भी होते हैं, और अल्लाह ताला उनको कामयाब भी करेगा। हमारी तरफ से उनके लिए पूरा आशीर्वाद है। और हमने जो है अब जो फ्यूचर प्लान है, हमने जो है प्रोजेक्ट रखा है हमारा आईएएस एकेडमी का है, और हमारे अलग अलग क्षेत्र में जो है आईएएस प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं। और हमारी ये मिस्टर आज़ाद जी हैं और अब्दुल भाई हैं, और हमारे कई सारे जो है टीम मेंबर्स हैं जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा है, ये एक जने के बस की नहीं है, ये काफ़ी लोगों का सहयोग है और काफ़ी लोगों के फंडिंग के हिसाब से जो है प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। और ये हमारा प्रोग्राम निःशुल्क प्रोग्राम है, और जिसमें जो है जो एसटी, ओबीसी, पीएच वाले जो बंदे हैं, इकोनॉमिक से बैकवर्ड वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। और ये हमारा जो है कोटेशन के हिसाब से प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। और ये फंडिंग जो होती है हमारी जो है फंडिंग, हम अलग अलग जो एरिया के जो लीडरशिप है उनके हिसाब से जो फंडिंग कराने का प्रोसेस हमारा प्लान रखा गया है। और हम चाहते हैं कि आगे चल के ये प्रोग्राम हर एरिया, मान लीजिए बहुत से एरिया में ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जो है ख्वाब उनके बहुत ऊंचे होते हैं, यूपीएससी आईएएस करने के होते हैं, लेकिन वो आईएएस यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उनका इतना वीक होता है, क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल लाइन में अपने फादर के सामने उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि हमारी फैमिली में क्या कंडीशन है, क्या हालात चल रहे हैं, इसलिए वो मेंशन नहीं कर पाते। तो उन्हीं के लिए हम आज से चाहते हैं कि हमारे जो है 15 अगस्त 1947 को आज हम जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है यूपीएससी की तैयारी करें। उनसे निवेदन है कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। हमारा कोचिंग सेंटर जो है हर क्षेत्र में, हर एरिया में ओपन होने वाला है, और हम अच्छे अच्छे लीड सपोर्टेड भी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हम प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। और दूसरी बात जो है, हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन मकसद ये नहीं है कि मतलब जो है हमें बैलेंस के लिए है। हमारा मेन मकसद ये है कि जो मतलब जो है कमज़ोर हालात के आदमी हैं उनके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। हमारे हदीस में कहते हैं, हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हें तालीम के लिए अपने देश छोड़कर चीन भी जाना पड़े तो आप तालीम के लिए चीन जाइए, क्योंकि इल्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास इल्म है तो आप कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे। एक पैसे वाला आदमी मतलब जो है अच्छा आदमी नहीं होता, जिसके पास इल्म होती है वो सबसे अच्छा आदमी होता है। तालीम के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े, आप तालीम हासिल करो। तालीम सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर तालीम आपके पास है तो पैसा आपके साथ साथ है, अगर तालीम आपके साथ नहीं है तो पैसा आपके साथ नहीं है। मैं इसलिए चाहता हूँ हर बंदे से कि आप जो है अपनी जो तैयारी करें, और कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी लेवल की हो। मैं ये नहीं कह रहा यूपीएससी तो करो, एक अच्छा बहुत बढ़िया चीज़ है। हर इंसान के, मुस्लिम लोग हैं, मतलब जो दलित लोग हैं, और पंडित लोग हैं, यादव लोग हैं, मतलब डिफरेंट रिलीजन वाले हमारे देश में रहते हैं, जैन धर्म वाले, फारसी धर्म वाले। सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराएं और आगे चल के एक अच्छा काम करें, क्योंकि एक यूपीएससी वाला बंदा ही जानता है सामाजिक वर्क क्या होता है। हर बंदा जानता है, लेकिन हर बंदा उस तरीके से कर नहीं पाता। यूपीएससी वाला बंदा आईएएस की तैयारी करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता तब भी वो जानता सामाजिक वर्क मुझे कैसे करना है। तो सामाजिक वर्क हर इंसान को करना चाहिए और यूपीएससी की तैयारी कराएं, क्योंकि हर इंसान के अंदर सामाजिक वर्क होगा और हर इंसान को एक हार्मोनी टाइप के पॉइंट हो उसके अंदर होंगे, तो ये समझो कि देश के अंदर अमन और शांति की पैदा होगी।
और मेरा कहने का मकसद ये है कि हर प्रोग्राम को कोई भी चीज़ अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, मान लीजिए आप पानी भी पी रहे हैं तो पानी भी उस तरीके से पिए सामने वालों को असर लगे कि बंदे के अंदर यूटिलिटीज हैं, काबिलियत है, बंदे के अंदर योग्यता है, तो उसके पानी पीने का भी स्टाइल है। बहुत से अलग अलग तरीके से पानी पीते हैं, मतलब जो है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब कहने का मकसद मेरा यह है कि जो भी हमारे हर क्षेत्र में ओपन हो रहे हैं, काम प्रोसेस चल रहा है, वो सभी के लिए है और सभी के मतलब कैटेगरी के लिए है। हमारा जो है जो फीमेल लड़कियां हैं उनके पास, उनके लिए हम 35% डिस्काउंट भी देंगे जो हमारे टेस्ट सीरीज क्लियर नहीं कर पाएंगी, और जो लड़के जो है मतलब जो है टेस्ट सीरीज क्लियर कर पाएंगे उनको जो है फिर यही स्कॉलरशिप हम जो है उनकी प्रिपरेशन कराएंगे यूपीएससी की। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हमने जो 15 अगस्त पे जो प्रस्ताव रखा है ये केवल उनके लिए है, ये सारे हिंदुस्तान वासियों के लिए है। हर इंसान यूपीएससी की तैयारी करे और जो जिस लेवल में भी करे, मैं ये नहीं कहता बीएससी एमएससी कोई भी करे, अपना कैचिंग अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मुझे ये करना है तो करना है, पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसके साथ करने के लिए, उसका साथ देने के लिए बहुत आदमी आएंगे। अपने अंदर देखिए मैंने क्या है, मैंने अपना कोचिंग सेंटर का प्लान अपने लॉन्च किया है। मेरे पास मान लीजिए फंडिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कैसे करता हूँ, मेरे जो है रिलेशनशिप बहुत डीपली है। मेरे रिलेशनशिप में हर इंसान से एक भाई की तरह मिलता हूँ, और मेरे जो रिलेशनशिप है मान लीजिए माशाल्लाह अल्लाह के रसूल की दुआ से बहुत अच्छे अच्छे लोगों से ताल्लुकात भी हैं, और उन्हीं के ताल्लुकात के जरिए से मैंने हर जगह अपने एरिया में यूपीएससी कोचिंग सेंटर डालने का मेरा प्लान है। और मैं आपसे हर इंसान से, भाइयों बहनों से निवेदन चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है 15 अगस्त और आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए और पूरे सेकुलर लोगों के लिए। और अपने जो भी ये जाता दंगे जो हो रहे हैं, डिफरेंट लोग आवाएं, एक्चुअली क्या है मीडिया वाले जो भी कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, आप अपने मन की और अपने दिल की सुनो, वो करो। मतलब जो है डिफरेंट लोगों की मत सुनो, आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है वो करो। पॉजिटिव पॉइंट पकड़ो, नेगेटिव पॉइंट मत पकड़ो। नेगेटिव पॉइंट के पीछे भागोगे आप बहुत पीछे रह जाओगे, पॉजिटिव पॉइंट के पीछे भागोगे आप बहुत आगे चले जाओगे। कहते हैं कि हमारी भी एक हदीस में है कि मतलब जो है देखबंदी और सुन्नी का जो प्रोसेस होता है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। मैं कहता हूँ ऑब्जर्व चीज़ पकड़ो, गुड ऑब्जर्व, अच्छी चीज़ें कहाँ हैं, हम अच्छी चीज़ कहाँ मिल रही है वो चीज़ हमें पकड़नी चाहिए। जिस रिलीजन में हमें अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ सबसे बढ़िया है। धर्म कोई सा बुरा नहीं होता, धर्म हर इंसान को एक ही बात बताता है कि ट्रूथ अल्टरनेट पॉइंट, अच्छे रास्ते पे चलो, गलत रास्ते पे जो है हर धर्म मना करता है और सब धर्म यही कहते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे चाहूँगा जय हिंद जय भारत। नासिर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो काफ़ी कुछ शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया, और आशा करते हैं कि आप लोगों का ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा हमारे YouTube चैनल को, या फिर हमारे जो भी हमारा मिशन है उसको सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय भारत। हाँ बेटा, किस क्लास में हो? आगे क्या करना है? तो ये आपका नाम क्या है बेटा? ये इसका नाम ज्योति है। इसको डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो मिशन आजाद फाउंडेशन की तरफ से मैं इसको पूरा सपोर्ट करूंगा, और आगे की पढ़ाई के लिए अगर इसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। हाँ बेटा, किस तेरे संग में
सजना वे अखियों ने लिखे लव लेटर में हो मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर में सजना चांद से बेहतर वे सजना वे साडी छुट्टियां पढ़ ले रहने जदों तो पे चढ़ के खिड़की ने बड़ो बड़ो से लड़के बीतों की छुट्टियां साडी छुट्टियां पढ़ ले रहने जदों तो पे चढ़ के खिड़की ने बड़ो बड़ो से लड़के बीतों की छुट्टियां हाय करियो न मुझसे तू झूठे मूठे वादे रह जाएंगे हम तो तेरे बिन आधे आधे तेरे लिए ही बनी हूँ मैं तेरी डेस्टिनी हूँ ले मेरे क्लियर कर दिए हैं अपने इरादे हाँ राहें मैंने देखी तेरी जुगनुओं की आग के कैसे मैं बताऊँ तुझको सौ सुरतियाँ जाग के अखियों ने लिखे लव लेटर में हो मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर में सजना चांद से बेहतर वे सजना वे अखियों ने लिखे लव लेटर में हो मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर में सजना चांद से बेहतर वे सजना वे You gotta show me, let you know, let you know, let you know, let you know, let you उससे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या उससे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई जहाँ जाए तो संग मुझे ले जा ले जा ले जा ले जा महकी रात में चला के सारे रूम बना जा मुलाकात रह जा जब आपसे खोलने जा रही हूँ तो मेरी बहनों के साथ मैं बता रही हूँ और क्यों क्योंकि ये देखो हैशटैग यू हैशटैग आउट हैशटैग अप और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ उसे बुझने से पहले उसे बता के तो जा क्या
अरे सुनती हो, ऑफिस से आया हूँ, चाय पानी खाना पानी तो दे दो। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रही थी? ये बोल रही कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती हो? इससे बात करो, मेरे से ये पूछ रहे हो। क्यों जाना चाहती हो? मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों? ताकि मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ और आपका भी। अच्छा ठीक है। कितनी फीस लगेगी? 500 रुपये लगेगी। ठीक है। पैसे दे दो। सर पैसे दे दो। ये लो। कल जाऊंगा एडमिशन करवाने में इसका। ठीक है। वेटर इधर आओ, आजकल बच्चे आ रहे नहीं आ रहे स्कूल में? अरे अभी तक तो नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? पता नहीं। किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? पता नहीं। बाहर जाओ, चेक करके आओ कोई बच्चा है नहीं है। पूछना क्या करना, कोई है? मैं एडमिशन भी करवाने स्कूल आए तो एडमिशन करवाने आएंगे। सर पर एडमिशन करवाने आए हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग? हम दो में यार कौन है? सर दो हैं। अबे नाम पूछ के आ जा दो। मेरा नाम है। अरे सुनती हो? हमारे अभिभावक कुंवर सिंह जी से निवेदन करते हैं कि बच्चों के नाम 2 शब्द अपना बोले। सर प्लीज। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को बधाई, और बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करें। माय नेम इज यश शर्मा। मैं मेरी विद्या वंदना कोर्स में पढ़ता हूँ और मैं इंडिपेंडेंस डे पे एक एक्ट कर रहा हूँ, उसमें मेरा रोल है प्रिंसिपल का। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल प्रजापति। माय नेम इज प्रणव वर्मा। माय नेम इज नीतू प्रजापति। माय नेम इज काजल शर्मा। माय नेम इज शुभम चौहान। आइए अब हम इस नाटक का पहला पार्ट देखते हैं। मम्मी मम्मी मुझे स्कूल जाना है। बेटा क्यों जाना है तुम्हें स्कूल? मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। तो क्यों बनना चाहती हो? ताकि मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। क्यों रोशन करना चाहती हो और कैसे करोगी? मैं पढ़ूंगी तो मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी, और मैं अगर अच्छा पढ़ूंगी और स्कूल में हिस्सा लूंगी तो फिर मैं दूर दूर देशों में जाऊंगी और अच्छा कुछ कर पाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं तो तुम्हारी ऐसी नौकरी लगवा दूंगी घर में काम करने वाला। नहीं, ये नौकरी तो अनपढ़ लोग करते हैं, मैं तो कुछ पढ़ना चाहती हूँ। हम भी तो अनपढ़ हैं। तो आप आपके स्कूल में तो, आपके जमाने में तो स्कूल नहीं होंगे ना, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। होते तो थे, पर आप जाते क्यों नहीं थे फिर? इतने सवाल मेरे से मत पूछो, आज तुम्हारे पापा को आने दो। ठीक है।
नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूँगा न डरे डरे के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं हम, आगे भी आगे बढ़ाऊँगा कदम। गंदी बाय हम, नन्ना मुन्ना रानी हूँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। झूमी पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पाके न पाएंगे जन्म, आगे भी आगे बढ़ाऊंगा कदम। गंदी बाय हम, नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो